start the recording. Uh, so, so in the operating system structure, basically this is complex software. This is a huge software. This is a very large software. Okay, and it support many functions. Number of functions it support. As we have already seen in the components of the operating system, we know that around 8 components were there. Okay, so we at the initial, I think 1 or 2 years before, there was one question in the operating system. एक topic भी था operating system functions. Okay, तो functions के अंदर फिर इसके बहुत सारे functions आते थे. Let me tell you the functions of operating system. एग्जाम में आप क्वेश्चन तो आता नहीं है. हाँ, इसके अंदर बहुत सारे functions है, around 8 to 10 functions mentioned है. Okay, but it's possible then I'll take an image and then I'll send it to you on WhatsApp group so that you can see at least के कौन-कौन से function. For example, it assigns a processor to the different tasks being performed by the component. Okay, all these functions are being performed by the component only. What we have seen in the previous slide. Okay, अच्छा ये सारे काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस के अंदर जो सारे काम है वो कौन करेगा? ये सारे काम ये आपके कंपोनेंट्स करने वाले हैं. ओके, आपके प्रोसेस को मैनेज कौन करने वाला है? प्रोसेसर को मैनेज आपका प्रोसेस मैनेजमेंट का मॉड्यूल करने वाला है. मेमोरी कौन देने वाला है? स्टोरेज से कनेक्ट कौन करने वाला है? आपका सेकेंडरी स्टोरेज करने वाला है. So we have all these components who are actually doing all these functions. Okay, I'll take up the last 22. Those are very simple. जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वही actually. So basically, as an operating system, it supports number of functions it support, and it should be collection of a small module with carefully defined number one input. Okay, whatever input we are giving, then we are having output, and then the functions which my operating system is performing. Okay, so rather than a piece of a software, a complete huge software होने के बजाय, what we can do, we can have मॉड्यूल टाइप हो सकता है हमारा. जैसे होता है ना आजकल मॉड्यूलर कंसेप्ट बहुत चल रहा है. Most of you people have heard about it. Okay, now the next mobile and your laptop, your computer system is going to be a modular, modular कुछ होने वाला है, modular concept होने वाला है. For example, आपका मोबाइल है. Okay, मोबाइल के अंदर you are having networking communication की एक अलग IC, एक अलग chip. Okay, एक छोटा सा मॉड्यूल. Okay, and then for display you have one different module or chip or IC whatever. Okay, तो ऐसे सबका अलग अलग है. आपका डिस्प्ले गया, आप जस्ट वो चिप निकालो डिस्प्ले. you can do it from home. Just go to shop और go to the जो भी मोबाइल शॉप है वहाँ पे जाओ और मॉड्यूल आप परचेज करो. just open it and then you can just attach it with a particular mobile phone. So it will be like simple. So modular concept होने की वजह से the thing will be very simple. Okay, the component, the object which is faulty, you can just remove it, you can put the another one. Okay, so instead of having the whole software as a software as a whole, okay, you can have module. Okay, that is the reason, that is the main reason in software development companies, those people are having those people actually divide the complete software into number of modules. Okay, so if you divide the whole software, whole project into number of modules, then it will be easy to assign each and every module, each and every team. ठीक है, टीम ए को दिया एक मॉड्यूल टीम बी को दिया, टीम सी को, टीम डी को, 4 मॉड्यूल 4 को दे दिया. Okay, after 1 week that particular software will be ready because those the task we have divided will be given to different teams. टीम ए रिटर्न करेंगे, टीम बी, टीम सी, टीम डी, चारों मॉड्यूल को क्लब किया आपने एंड जो भी नेसेसरी एक्शंस थे वो किए, आपका प्रोजेक्ट रेडी. So this modular concept is always okay. So here we are going to see different operating system application. Okay, so instead of wasting time in this particular theory one, let's start with the very first one. That is the very first one is simple architecture. I just told you the listing of these different types of architecture. One is the simple architecture, second is the layered architecture, the third one is monolithic architecture, and the fourth one is microkernel architecture. Okay, you need to remember these 4 different types of architecture, or you can say structure. Okay, कहीं पर नाम architecture बोले तो confuse होने की जरूरत नहीं. Okay, so these are operating system structures starting from simple, layered, monolithic, and microkernel. So 4 SLMM. Okay, simple, layered, monolithic, microkernel. Monolithic and microkernels एग्जाम में ज्यादा आते हैं, लेयर थोड़ा कम आता है, सिंपल तो कुछ है. ठीक है,
Let us start with the first one, that is very simple architecture. So this is basically a small, simple, and limited system. You are having, very less number of functions, as we have seen. Right now, the operating system what we have in that particular operating system, we are having lot of functions. Okay, बहुत सारे functions हमारे पास हैं. We can use all of them. Okay, but in the earlier stage, we were having very simple architecture. Okay, in that simple architecture, it was small b, simple b, and it was a limited system. We are not having lot of function in that particular operating system. तो एक स्ट्रक्चर वो था, तो उसको भी मेंशन किया. इट वाज नॉट वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, बिकॉज सिंपल था. तो और उसके अंदर कुछ ज्यादा प्रॉपरली मॉड्यूलराइजेशन भी नहीं हुआ था, सो इट वाज नॉट वेल डिफाइंड. देयर इज नो सीपीयू एग्जीक्यूशन मोड, दैट इज सीपीयू एंड कर्नल. ये आप कभी नहीं समझेगा, हम लोग बाद में देखेंगे. हाँ, सो कॉज एप्लीकेशन एरर्स कैन कॉज सिस्टम क्रैश. एक्चुअली इसके अंदर हमारे पास में whenever आप आगे के आर्किटेक्चर, आगे के स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, so these architecture they have provided us with the kernel mode and the user mode. ठीक है, तो whatever user application जैसे आपने अपने Mozilla Firefox ओपन किया, आपने VLC पे, so all these are the user applications. तो आपके user लेवल के अंदर, user mode के अंदर रन होती है. ओके, and those which are of the server लेवल, तो जितने भी आपके सिस्टम के जो एप्लीकेशंस है वो आपके कर्नल मोड में रन होती है, जिसका मतलब जिनसे हमारा आपको लेना देना है. हमारा सिस्टम हमने हमने अपने लैपटॉप को स्टार्ट किया, इन्हें जस्ट हम लोग ने उसको ऑन किया. तो ऑन करने के बाद में जो कर्नल मोड के अंदर ऑलरेडी कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, सारे मॉड्यूल एक्टिवेट होना शुरू हो गए. ओके, इट विल ऑटोमेटिकली कैच अप द नेटवर्क, आपके वाईफाई को कैच करेंगे. सो ऑल दीज वर्क्स ऑन द कर्नल. हम लोग कर रहे हैं किसी नेटवर्क मोड को, किसी नेटवर्क मॉड्यूल को हम लोग एक्टिवेट हम लोग कर रहे हैं? नहीं, हम लोग नहीं करते हैं. हम लोग सिर्फ सिस्टम को स्टार्ट किया हम लोगों ने, और उसने ऑटोमेटिकली सारे काम करना चालू कर दिया. सो ये होते हैं आपके कर्नल लेवल के लिए. तो यहाँ पर पहले के जो एप्लीकेशन होती, इनकी वजह से कभी कभी सिस्टम को क्रैश भी करती थी, बिकॉज एप्लीकेशन एरर आते थे, और एप्लीकेशन एरर को हैंडल करने का उस टाइम पे कोई वो नहीं. तो आज से बहुत साल पहले की बात है, आपका सिंपल आर्किटेक्चर. आजकल तो वी आर हैविंग लॉट ऑफ फीचर्स विद अस, सो दैट these things are not even possible. एग्जांपल पहले का, how many of you people have used MS DOS system? It was disk operating system. आप में से काफी लोगों ने यूज किया अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है. अर्लियर सिस्टम वाज कंप्लीटली कमांड लाइन इंटरफेस आपका होता था. कमांड की बेस पर आपको सारे काम करना होता था. ओके, इवन RHEL आपका रेड हैट लेना, आपका एंटरप्राइज लिनक्स जो था, जिसका सर्टिफिकेशन होता है, सो दैट पर्टिकुलर जो आपका होता है उसका पूरा कोर्स है कंप्लीट. सो अर्लियर इट वाज कंप्लीटली कमांड बेस्ड. अब तो उसका GUI वगैरह निकाल के उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया. तो वैसे ही आपका MS DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. किसी ने यूज किया है? किसी का आंसर कुछ नहीं आया? किसी ने यूज किया है? नहीं. ओके ओके ओके. एक्चुअली हम लोग जब स्टार्टिंग में अराउंड इन 2000 आज से अराउंड 20 साल पहले इसको हम लोग यूज करते थे. कंप्यूटर क्लासेस वगैरह उस टाइम पे मतलब बहुत ट्रेंडिंग में थी कि कंप्यूटर क्लास लगा के उसमें हम लोग MS DOS सीखते थे. इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड, दोस कमांड्स, उसको कैसे कैसे इसको यूज करना है. तो बेसिकली वो होता था, ब्लैक स्क्रीन होती थी, कुछ कहीं पर भी आपको विंडोज का कोई ऐसा लोगो, स्टार्ट वगैरह कुछ दिखता नहीं था. you will receive a black screen. ठीक है, ब्लैक स्क्रीन, और उसके अंदर आपको सारे कमांड एक एक करके ट्राई करके उसको सीखना. even lot more commands are even possible even if you want to write a mail. so उस टाइम पे अगर आपको एक मेल भी लिखना होता है तो आपको कमांड लाइन, सो यू मस्ट रिमेंबर ऑल द कमांड व्हिच आर रिक्वायर्ड टू राइट अ मेल. ठीक है, तो आपको मेल लिखना है तो उसके लिए सब्जेक्ट, फिर उसके लिए कमांड कौन सी, तो एक एक करके आपको सारी चीजें देना होता है. एंड आफ्टर दैट जब आप मेल सेंड करते तो कमांड लाइन के थ्रू जाता है. तो इस तरीके से पहले आपका MS DOS था. अगर टाइम मिले so you can just go through about that MS DOS, that is disk operating system, DOS. Okay, so it was an example of the simple structure. सिंपल भी था बिकॉज वहाँ पे कोई GUI नहीं था. स्टार्ट में एप्लीकेशन, टास्क मैनेजर, ये एप्लीकेशन आपको कुछ नहीं था.
ठीक है। ब्लैंक स्क्रीन जस्ट कमांड के थ्रू काम होता है। इन MS DOS एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द डिवाइस ड्राइवर। ऑब्वियसली जब कोई आपका यूआई नहीं है, कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, तो इंटरेक्ट किससे करना है, सीधा आपका डिवाइस ड्राइवर से करना है, ठीक है। आपने सिंपल किया ls, फॉर एग्जांपल उस टाइम पे आपने किया ls, दैट इज फॉर लिस्टिंग दी ऑल दी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। या फिर आपने एक फाइल आपने एक डायरेक्टरी बनाया mkdir, ठीक है। तो mkdir आपने डायरेक्टरी बनाया, तो उसमें किससे डायरेक्टली कांटेक्ट किया, स्टोरेज वाले बंदे से कांटेक्ट किया कि भाई देख मुझे आपके स्टोरेज में एक फोल्डर बनाना है ये नाम। सो आपकी जो कमांड होती थी वो कमांड, आपका कमांड ये डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट करता था, आपके डिवाइस ड्राइवर से, ठीक है। सो इट वाज लाइक दैट। So if user makes any changes, then it may result problem, ठीक है। तो बिकॉज डिवाइस ड्राइवर के साथ में खेलना थोड़ा सा एक जोखिम होता है, थोड़ा सा एक, अगर नेव यूजर है तो वो उसको अगर कभी प्रॉपरली कमांड्स वगैरह पुट नहीं कर पाया, सारे पैरामीटर्स अगर नहीं दे पाया, सो इट मे कॉज प्रॉब्लम एंड इट गोज अप टू द सिस्टम क्रैशेस। तो पहले पहले के स्टार्टिंग में सिस्टम में बहुत सिस्टम क्रैश बहुत होते थे। लोग विंडोज 95 यूज करते थे, तो उसके अंदर भी काफी बार कुछ एप्लीकेशन रन की, एक से दो तीन एप्लीकेशन रन कर दिए, तो कभी कभी सिस्टम एकदम बिल्कुल हैंग मोड में चला जाता। सो थोड़ा सा पहले सिस्टम था भी ऐसा, सिंपल आर्किटेक्चर था। मेमोरी साइज वाज आल्सो लिमिटेड, after use memory must made free for other users also. If you are using any application, then obviously some sort of memory will be allotted for that particular task or that particular application, and after that particular application, if you are done with that particular application, then that the memory which was allotted must be made free so that other application can use that particular memory. तो ये उसके अंदर सिस्टम था भी, लेकिन बहुत कम था, यानी कि प्रॉपरली मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन, जिसको आप लोग अच्छे वर्ड में बोलते हो, सो इट वाज नॉट प्रॉपरली देयर इन दी सिंपल आर्किटेक्चर। एक सिंपल उसका हमने डायग्राम जो मुझे बुक से मिल पाया है, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन द टॉप, देन रेसिडेंट सिस्टम प्रोग्राम, आपके उसके बाद MS DOS के डिवाइस ड्राइवर, देन रॉम बायोस, ये आपका बायोस में आपके डिवाइस ड्राइवर वगैरह। मतलब बेसिकली इफ यू इमेजिन कि आपके ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये आपका नीचे हार्डवेयर है, ओके, और एप्लीकेशन प्रोग्राम, और उसके बाद में जो हम लोग जो सिस्टम प्रोग्राम यूज करते थे जो कि आपके MS DOS के हैं, उसके थ्रू MS DOS के डिवाइस ड्राइवर को कनेक्शन, और वहां से डायरेक्टली आपके हार्डवेयर को कनेक्शन। सो बेसिकली इंटरेक्शन यहाँ पर ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था, बल्कि मतलब जिसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट इंटरेक्शन था। बीच में कुछ ज्यादा एप्लीकेशन वगैरह, GUI ड्रॉअर वगैरह ऐसे कुछ नहीं था, ठीक है। दिस वाज अ वेरी सिंपल आर्किटेक्चर। Coming to the next one, that is layered architecture, okay। अब यहाँ पर लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर्ड आर्किटेक्चर की जरूरत यहाँ पर आई, बिकॉज थोड़ा सा आगे चलने के बाद में आपके माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 95, विंडोज 98 ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगे। तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर था, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को थोड़ा लेयरिंग में कन्वर्ट किया, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम लेयर 0, लेयर 1 2 3, लेयर n, ओके। सो ऑल दोज लेयर वर डिफाइंड, एंड टॉप लेवल पे ऑब्वियसली आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम रहेंगे। आपने क्लिक किया VLC प्लेयर पे, तो आपका एप्लीकेशन, तो दैट इज नथिंग बट आपका VLC क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो टॉप पे आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम, और आपके बॉटम में क्या रहेगा, आपका हार्डवेयर रहेगा, ठीक है। सो उनके बीच में इंटरेक्शन रहेगा, कुछ लेयर्स रहेंगी, तो चीजों को वहां पर कैटेगराइज किया गया। So with proper hardware support, OS can be broken into, operating system can be broken into number of pieces. अब यहाँ पर थोड़ा इन लोगों ने layering का concept सोचा कि we can have a layers also. So they have divided the operating system into a number of pieces, okay, and which are smaller and more appropriate to use, okay, so that the interaction will be done among the proper channel. And the system can be made modular in many ways, okay, as we know that we can make the modularized system so that the interaction will be very feasible between the required components only, okay. No need to involve the person, no need to involve the component which is not required at all, okay। लेकिन जो previous architecture थे उसके अंदर उनको बीच में घसीटना पड़ता था सबको। One is layered approach, in which OS is broken into a number of layers and each layer is properly defined, okay। हमने हर layer को define किया। The bottom layer was layer 0, it was called as layer 0 and it was the hardware layer। Obviously आपका bottom जो आपका जो है, it is the hardware part। आपका for example आपके जो
जो जो मतलब आपके मदरबोर्ड पे लगे हैं चीजें, तो दैट इज बेसिकली हार्डवेयर है। ओके, सो बॉटम लेयर में आपके हार्डवेयर है, और उस आपके जो टॉप लेयर पे है तो उसको हम लोग बोलेंगे लेयर एन, एंड दैट पर्टिकुलर लेयर एन इज द यूजर इंटरफेस लेयर। ओके, so this is the highest layer. Function of each layer is also fixed. Okay, so we have defined the function for all the layer कि भाई layer 0 आपका ये काम, layer 1 आपका ये काम। okay, अब देखो एक थोड़ा सा आपको मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। एज यू कैन सी यहाँ पर देखो इंटरेक्शन है, एप्लीकेशन प्रोग्राम का भी इंटरेक्शन किया है डिवाइस ड्राइवर के साथ में। तो ये अननेसेसरी इंटरेक्शन इंटरेक्शन है, यहाँ से भी इंटरेक्शन है, यहाँ से यानी कि अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट होता था आपके। ठीक है, तो जब उसको थोड़ा सा और सोचा गया तो फिर लेयरिंग कॉन्सेप्ट आया। तो लेयरिंग कॉन्सेप्ट में वी कैन हैव द इंटरेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स only. So no need to involve the components which are not required. So the last one, some advantages were there. Design and implementation makes simple and it makes debugging much easier. मैं थोड़ा सा एक्चुअली फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज आप लोग ये चीजें ऐसी है कि आप इसको एक बार आप रीड भी करेंगे तो आप लोग आराम से समझ सकते हैं। वी आर जस्ट गोइंग थ्रू एंड वी आर जस्ट लुकिंग एट द डायग्राम जो इम्पोर्टेंट है। डायग्राम देखते हैं, यू कैन सी द डायग्राम। डायग्राम डैम सिंपल। they have just drawn the diagram. Okay, if you will find if you will find the diagram, if you will find any other diagram in any other books, okay, so you can find what I mean to say. You can find different diagrams in different books and different internet also you can find different things. Okay, so they have conceptualized the things and यहाँ पे लोगों ने इसको ऐसा किया है। ठीक है, सो स्टार्टिंग में आपका जो लेयर 0 है आप लोग देख सकते हैं, लेयर 0 इट्स अ कंप्यूटर हार्डवेयर विच इज द इनरमोस्ट लेयर। सो कंप्यूटर हार्डवेयर लेयर जिसको हमने लेयर 0 बोला है। देन लेयर 1 वी कैन नोट थिंग, ओके, इंटरेक्शन जहां जहां रिक्वायर्ड है हम लोग डाल सकते हैं। दिस इज अ कोर डायग्राम। ठीक है, दिस इज नॉट द वी कैन से दिस इज द जनरलाइज्ड पैकेज। सो द लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 जितने भी लेयर बीच में आप रखना है, यू कैन हैव दैट दोस लेयर्स। एंड आफ्टर दैट एप्लीकेशन प्रोग्राम की जो लेयर्स है वो n-1 पे रखें उसको, यानी कि सेकंड लास्ट। और जो टॉप पे रखे हैं वो यूजर इंटरफेस लेयर। ठीक है, यूजर इंटरफेस में हम बेसिकली आपने जैसे फॉर एग्जांपल किसी एप्लीकेशन को ओपन किया, सो दैट्स द यूजर इंटरफेस ऑन व्हिच यू कैन सी actually the VLC player is opening in front of you and you have opened any movie. ठीक है, so the movie is playing over, the movie is playing over here and you can see actually, so you can perceive the things, okay, from the screen. So that is the user level, user interface view, okay, or user interface layer. So basically they have divided in that particular structure, they have divided the operating system into number of layers, okay, or you can also call them as the levels also. ठीक है, level 0, level 1, level 2, level n, up to level n. Okay, so starting from layer 0, then layer 1, then goes to layer 2, 3, 4, and then up to n-1, that is application program layer, and the last one is the user interface. Okay, I know the things are in front of you only, I'm just repeating the things what is there on the screen. Okay, so this is about the layered architecture, those were very simple. Okay, अब यहाँ एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट है। बिफोर गोइंग थ्रू the third and fourth one, the third structure is monolithic structure and the fourth structure is microkernel structure. Okay, so those two structure, okay, before starting those two structure, let me have a brief introduction of this particular topic, that is kernel. Okay, because kernel समझे बिना हम लोग आगे नहीं जा सकते। Okay, so let us start with the new one, that is the kernel. Now what is kernel? आप में से कोई बताना चाहेगा पहले? What do you mean by kernel? कहीं नाम सुना है? कर्नल वाला कर्नल नहीं, वो आर्मी अपने आर्मी में रहते हैं ना कर्नल, वो लोग। So this is the one which we have already heard about it. Someone please from your side. अरे कुछ तो बोलो भाई। I will come to know that the people are नहीं सुने। हाँ ठीक है। अच्छा, ओनियन देखे आप लोगों ने? कर्नल कनेक्ट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आते हैं हम लोग उसके ऊपर आते हैं। आपने काफी जनरलाइज चीजें बोली है लेकिन सही है, राइट है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने ओनियन देखा है? ओनियन
अच्छा, ओनियन तो आप लोगों ने सबने देखे हैं। ओनियन को काटा किन किन लोगों ने? उसको प्रॉपरली बाहर से छील कर उसको प्रॉपरली इसकी कटिंग किसने किया? सबने की है या खाली गर्ल्स ने की है? दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके। द कर्नल कम्स फ्रॉम दैट वर्ड ओनली, ओके। कहाँ से कौन सा वर्ड था और उसको कौन सी लैंग्वेज में ओनियन ही बोलते हैं? द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ओनियन इज कॉल्ड एज कर्नल, ओके। द इनर मोस्ट, जो आपके ओनियन के अंदर का जो इनर मोस्ट पार्ट होता है, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज कर्नल। अच्छा, इसको कर्नल क्यों बोलते हैं? बिकॉज आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल होता है ना, वो भी एकदम इनर मोस्ट पार्ट है और बहुत ही क्रूशियल पार्ट। और उसके ऊपर कवरिंग होती है, वो होते हैं शेल की कवरिंग, SHEL। ये वर्ड आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, तो कहीं इंटरनेट पर, कहीं पर आप लोगों ने सुने हैं। ठीक है, कर्नल है, शेल है, बैश है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं इसको ऑफिशियली। कर्नल बेसिकली कोरिलेट करते हैं ओनियन के साथ में, बिकॉज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ओनियन इज कॉल्ड एज कर्नल। एज यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द ओनियन का जो होता है स्ट्रक्चर, उसके ऊपर पहले आउटर लेयर होती है जिसको हम लोग छील के निकाल देते हैं, आपको भी पता है। उसके अंदर फिर उसकी एक्चुअल लेयर जो हम लोग को रिक्वायर्ड है, सो वो हम लोग को मिलती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सो हम लोग कट करते हैं। तो यू हैव सीन अंदर की एक लेयर, फिर दो लेयर, फिर थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन, बहुत सारी। अगर बड़न है, मतलब इतना भी बड़ा नहीं आता है भोपले के इतना, छोटा सा ओनियन आपका इतना भी बड़ा अगर है, उसमें तो अराउंड आपको 6 और 7 लेयर्स मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, इतनी लेयर्स के अंदर फिर जाके छोटा सा आपको एक ओनियन हल्का सा आपको मिलेगा। वो अच्छा भी बहुत लगता है, हाँ, काफी। तो अगर आपने इसको टेस्ट किया होगा तो अंदर का जो पार्ट होता है वो अंदर, और वो बहुत ही टेस्टी भी लगता है। तो जो अंदर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कर्नल, ओके। सो यहाँ पर एक्चुअली कोरिलेट करने का पर्पज यही है कि द कर्नल विच वी हैव इन आवर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एकदम अंदर वाले सारी लेयर्स होती है अलग अलग अलग, उसके अंदर जो जाके छोटा सा आपका जो पार्ट होता है वो कर्नल, वो कर्नल आपको एकदम बड़े बड़े काम करते हैं। देखते हैं क्या क्या काम करते हैं। So similarly, the innermost crucial part of the operating system is called as kernel. So you can just correlate, or you can just give the example that the innermost part of the onion is called as kernel. But you can tell this line also if someone asks you that the innermost crucial part of the operating system, that is kernel actually. Okay, and while the shell, okay, जिसकी मैं बात कर रहा था, the shell is the part that covers the kernel. तो उसके ऊपर की जो लेयर रहेंगी तो वो आपका शेल बन जाएगा। तो शेल बेसिकली नाम ही होता है, शेल किसी चीज को कवर करके रखता है। तो शेल इज द वन विच द पार्ट दैट कवर्स द कर्नल एंड टू हाइड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द कर्नल। ठीक है, तो बेसिकली शेल किसके लिए यूज करते हैं? कर्नल को छुपाने के लिए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज की, मतलब उसको छुपाने के लिए बेसिकली आप शेल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर दोनों को इसके लिए कोरिलेट करके करना। So you can keep that particular in mind that the onion को दिमाग में रखो, you will remember the kernel also. चलो आगे बढ़ते हैं। So kernel is the core component of operating system. I told you that it's a crucial part and it's a very most important part of the operating system. Okay, so we can call it as the core component. Okay, still operating system is having other components too, but the kernel is the very important one. Using RPC, the RPC is the new term for you. We'll come to this particular RPC later. That is basically a inter-process communication. Okay, one process communicate with another process. Okay, so they communicate using message passing. Okay, तो एक मेथड होता है, एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं मैसेज पासिंग सिस्टम. So with the help of that message passing, two process try to communicate with each other. Those two processes are already in execution. एग्जाम्पल सोच रहा हूँ मैं कैसा दूं आप लोग को। सो चलो जब आएगा जब आपको दे दूंगा एग्जाम्पल। सो आईपीसी इज बेसिकली इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ओके, तो दो प्रोसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, 2 3 4 5 processes are already executing and process number 1 and 2 are communicating also because they require some data. तो प्रोसेस 1 को प्रोसेस नंबर 2 से कुछ डेटा रिक्वायर्ड, तो प्रोसेस 1 ने एक मैसेज भेजा, ठीक है, यूजिंग मैसेज पासिंग सिस्टम एक मैसेज भेजा, भाई प्रोसेस नंबर 2 आई वांट दिस पर्टिकुलर डेटा। ओके, सो प्रोसेस 2 ओके जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स आई एम सेंडिंग। उसने सेंड किया, प्रोसेस 1 को मिल गया, तो दे हैव जस्ट कम्युनिकेटेड। ओके, सो ये जो कम्युनिकेशन होता है ये होता है आईपीसी के थ्रू, नॉट इंडियन पैनल कोड, दैट्स
इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये एक अच्छा टर्म है, एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है, इसके बारे में आगे टॉपिक्स में आएंगे। सो यूजिंग आईपीसी एंड सिस्टम कॉल इसके बाद का टॉपिक है, तो बट अब आते जा रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। तो सिस्टम कॉल भी आपके प्रोसेसेस और आपके हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेट करवाने के लिए सिस्टम कॉल्स यूज होता है। सो फॉर एग्जांपल, चलो एग्जांपल दूंगा तो और हम लोग डीप में जाएंगे। So using IPC and using system call, it act as a bridge between application and data processing. तो basically आपकी जो process जो execute हो रहे हैं, the process which are executing and the data which are stored in your drive, ठीक है, आपके आपके पेन ड्राइव में है, आपके डेटा स्टोरेज में है, so you are going to interact with all those storage and IO devices, और उनके साथ में कम्युनिकेट करके ब्रिज फॉर्म करके आपका कर्नल ब्रिज फॉर्म करके सारों को आपस में क्या करेगा, इंटरेक्ट करवाएंगे। तो इस बारे में थोड़ा और डिटेल में भी हम लोग को आगे आएगा, यहाँ था वर्ड था इसके लिए मैंने डाल दिया। सो अब आपका जो कर्नल है ये आता कब है, कर्नल आता कैसे है? व्हेन यू स्टार्ट योर ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने अपना सिस्टम स्टार्ट किया, लैपटॉप स्टार्ट किया, कंप्यूटर स्टार्ट किया, सो व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड, आपने जब जैसे स्टार्ट किया तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा पहले, और लोड होके क्या होता है, लोड होके आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, आपको उसका लोगो दिखता है, या लिनक्स वगैरह जो भी है। तो जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है उसी टाइम पे आपका कर्नल भी लोड होता है। तो कर्नल फर्स्ट लोड फर्स्ट एंड देन रिमेन इन द मेन मेमोरी टिल द कंप्यूटर इज बीइंग शट डाउन, ठीक है। तो कब तक रहेगा, जब कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तब से वो पहले मेमोरी में लोड होगा और रहेगा, कब तक रहेगा, जब तक कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका शट डाउन नहीं करे। So when your operating system is loaded, that kernel first loaded into the memory and then remains in the memory till you shut down the computer. So that's a very simple point. Kernel is the software code that resides in the central core of the operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत अंदर रहता है, ऑलरेडी कम आ चुका है, बट मैंने जो ये मेरा जो पर्पस होता है राइटिंग ऑल दी स्टेटमेंट, कि आपको कोई ना कोई स्टेटमेंट याद रहे, कोई ना कोई स्टेटमेंट कहीं ना कहीं से आपको याद हो जाए, ठीक है। आप लोग रिपीट करेंगे, इवन 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 फ्यू पॉइंट्स आर बीइंग रिपीटेड, बट स्टिल इफ यू रिपीट द थिंग देन दोस थिंग्स विल बी देयर इन योर माइंड। मैं इसके लिए चीजों को रिपीट भी करते रहता हूँ, कभी कभी रिपीटेड स्टेटमेंट भी आते हैं, बट मैं इन लोग को वॉलंटरी रख ही देता हूँ, सो दैट बार बार करने से, बार बार पढ़ने से, बार बार वो स्टेटमेंट आने से यू विल रिमेम्बर दोस पॉइंट्स, ओके। तो एक बार दो बार ये स्टेटमेंट रिपीट हो गया, द कर्नल इज द कोड, कर्नल इज द सॉफ्टवेयर व्हिच रिमेन्स इनसाइड द which is the very core component of the operating system and which resides in the central core of the operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत अंदर रहता है। इमेजिन कर लो ओनियन के जो अंदर का पार्ट है, सॉरी लेयर्स के अंदर का जो पार्ट है, दैट इज कर्नल। तो आप लोग कर्नल को इजीली डिफाइन कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट, इट हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सिस्टम। ऑब्वियसली जब कोर कंपोनेंट है तो इसके पास में कंप्लीट कंट्रोल भी है पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दीज वर द बेसिक पॉइंट्स। कुछ है कम्युनिकेशन बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये ऊपर का पॉइंट है, चलो ठीक है। कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट फॉर एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन, तो प्रोसेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है, मेमोरी मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, डिवाइस मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। देन सिस्टम कॉल्स कंट्रोल, भी सिस्टम कॉल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ईच एंड एवरी कंपोनेंट इज हैविंग द डिफरेंट सेट ऑफ सिस्टम कॉल, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ने कोई एक एप्लीकेशन ओपन की, मैंने एक वीडियो फाइल ओपन किया, प्ले किया, ठीक है, तो जब हम लोग ने कोई फाइल अगर एक्सेस किए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक वर्ड फाइल मैंने एक्सेस किया, मैंने वर्ड फाइल पे डबल क्लिक किया, तो क्या होगा, आपको पता है क्या होगा, आपका एक MS वर्ड का, अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हैं, सो MS वर्ड एप्लीकेशन विल ओपन एंड दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विल बी ओपन, ओके, आपके सामने ओपन होगा। जब ओपन होगा तो ये आपके सिस्टम को कौन बताएगा कि भाई यूजर ने इस फाइल पर डबल क्लिक किया है, तो इसको ओपन हमको करके यूजर को शो करना है, ये कौन बताएगा, ये आपके सिस्टम कॉल बताते हैं। तो सिस्टम कॉल आपके इस तरीके के काम करते हैं, हर लाइन के लोग के काम है, और उसके लिए उनके पास में स्पेशल कीवर्ड है, दोस आर कॉल्ड एज सिस्टम कॉल, ओके, दैट विल कम ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज सिस्टम कॉल। सो हर लाइन के अलग, फाइल मैनेजमेंट के अलग है, प्रोसेस मैनेजमेंट के अलग है, मेमोरी मैनेजमेंट के अलग है, IO मैनेजमेंट के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, तो सारे कंपोनेंट्स के सिस्टम कॉल अलग, okay, those are basically the keywords which are required
in order to in order to interpret the system कि भाई यूजर को ये चाहिए और इसको ये करना है, देखो फाइल मांग रहा है, फाइल को ओपन करने मांग रहा है, उसको ओपन करके दो। तो ये आपस में इन लोगों का कम्युनिकेशन करवाना है सिस्टम को, ठीक है। तो हमारे कर्नल के पास में सिस्टम कॉल्स का कंट्रोल भी होता है। कर्नल प्रोवाइड्स एंड मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज, provide and manage computer resources, allowing other programs to run and use their resources। तो ये करके चीजें आएंगी तो बहरहाल रिसोर्स मैनेजमेंट भी होता है, यानी आपका रिसोर्स मैनेजमेंट भी के लिए भी आपका कर्नल रिस्पॉन्सिबल है। सो दीज वर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कर्नल, ओके। कर्नल के अलग अलग कुछ टाइप्स है, ठीक है। एग्जाम में आते नहीं हम लोग को और ना ही आप लोग को सिलेबस में, बट स्टिल आई हैव मेंशन्ड सो दैट यू पीपल विल रिमेंबर, ओके। So these are the types of kernel. The very first is monolithic kernel, the second is microkernel, और उसके बाद में है आपका hybrid kernel। अच्छा, now you will understand the purpose of covering this particular kernel topic, because हमारे जो operating system structure है, हमारे जो दो structure है वो monolithic and micro kernel है, but monolithic और micro तक समझ में नहीं आएंगे जब तक कि हम लोग kernel topic cover नहीं करेंगे। So in between of the operating system structure का topic we have started this kernel का topic। So kernel get types है monolithic and micro kernel, then hybrid kernel, then nano kernel and exo kernel, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो तीन वाले हैं ना, ये तो hybrid वाला तो you can just understand it's a combination of 2 or 3 kernel। first 2 वाले हम लोग पढ़ने वाले हैं, that is monolithic and micro kernel structures, okay। So these are the types just for your reference, okay, not in examination, not in your syllabus, okay। So the one is monolithic kernel, monolithic structure। So let me revise the thing first, okay, because हम लोग ऐसा ना हो आगे पार्ट पीछे सपाट, ऐसे नहीं हो रही है, okay। So till now what we have done, अरे बाप रे 10:44 हो गए, I think you cannot cover it, at least we can cover this particular topic, that is monolithic kernel, okay। So today we have started with the operating system structure, okay। Operating system structure, we know that okay, we are having different structure of operating system। The first was simple structure, simple architecture, okay। उसके बाद में आया आपका layered architecture, simple वाले में simple 2-3 layer में simple बता दिया। Second वाला that it was a layered architecture। In that particular layered architecture we have seen that particular round shape diagram। In this, the innermost part was shown as the layer 0, that was the hardware layer, okay। Then 1 2 3 4 n-1, and then last mein n layer। So n-1 is the application program layer, okay। And the most one the most front layer, the frontmost layer was actually user interface layer, okay। तो ये ऐसा एक आर्किटेक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर द लेयर्ड आर्किटेक्चर वाज वी हैव सीन, ओके। ये तो आपके थे दो स्ट्रक्चर। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड स्ट्रक्चर, दैट इज मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, ओके। बस सिंपल है, आई विल ट्राई टू कवर दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन 5 minutes, then we'll leave, okay। Then tomorrow we'll micro kernel architecture and system call। So those two topics will be covered tomorrow, okay। So as you can see the name, so mono means everything you can put together, okay। So जितना आपके पास सामान है, जितना सामान है एक थैली में डाल, ठीक है, तो सबको आपने एक जगह पे कर लिया, एक यूनिट बना दिया, एक आपने थैली बना दी। और else what you can do, आप ये भी कर सकते हो कि हर एक चीज को आपने अलग अलग थैली, जैसे हर एक कुछ सामान है आपके पास में, आपका पाउच है, आपके पास में आपका माउस है, ओके, आपके पास में आपकी वॉच है। तो instead of putting all these different objects, okay, in the same carry bag, you can put all of these objects in the different ones, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इन मोनोलिथिक हमने सारों को कंबाइन कर दिया, सारों को एक जगह कर लिया। सो एक यहाँ पर आपका यूनिट बन गया। So mono means everything you can put together in one unit, okay। And entire operating system is the kernel space। अच्छा, एक और मैंने आपको इसके पहले चीज बताया हूँ। So in operating system we have two spaces actually, or we can say modes also। One is the user space and second is the kernel space। In user space we have all user application program, like you are opening VLC player, you are opening MS Word, you are opening MS Paint,
you are opening IDE, you are opening Android Studio. So all these are the user level program, user level application. ठीक है, आपके आपके अपने खुद के इंस्टॉल्ड के सॉफ्टवेयर है, आपने आपने इंस्टॉल किया है, ठीक है, तो आपके यूजर लेवल के सारे एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये जो यूजर लेवल सारे एप्लीकेशन जहाँ पे रन होते हैं, उस स्पेस को बोलते हैं यूजर स्पेस। आगे काम पड़ेगा इसके लिए बता रहा हूं। और एक होता है कर्नल स्पेस, जहां पर कर्नल लेवल के, सर्वर लेवल के, थोड़े से मैनेजर बोलते हैं ना, थोड़े से हायर लेवल के एप्लीकेशन रन होते हैं। मतलब कि जो हम लोग नहीं करते, सिस्टम वो पार्टीशन करता है, भाई देखो यूजर भाई तुम्हारी जगह ये है, यहाँ पर खेलो, और यहाँ पर ये जगह हमारी है, यहाँ पर हम अपने अपने एप्लीकेशन अपने प्रोग्राम यहाँ पे रन करें, नॉट गोइंग टू एंटर इन दिस पर्टिकुलर एरिया। ओके, सो ऐसे यूजर स्पेस एंड कर्नल स्पेस होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे मोनोलिथिक कर्नल में, यहाँ पर क्या बोला गया है, एवरीथिंग यू हैव टू पुट इन दी वन यूनिट। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, difference between monolithic and microkernel, the very important and the most the important one, the difference is in monolithic kernel we don't have any user space and kernel space। okay, हम तो हमारे पास में सेपरेट नहीं, हमारे पास में एक ही स्पेस है, सब जगह पे बिछा है, ठीक है। और जो माइक्रो कर्नल, जो इसके बाद में आने वाला है, दैट माइक्रो कर्नल इज हैविंग यूजर स्पेस आल्सो एंड कर्नल। तो उन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपने स्पेस, ठीक है, जहां पर यूजर लेवल एप्लीकेशन अलग रन होते हैं और आपके कर्नल स्पेस एप्लीकेशन अलग, एप्लीकेशन प्रोग्राम। सो इन एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम इज इन द कर्नल स्पेस। यहाँ पर यूजर लेवल तो है नहीं, यूजर स्पेस तो है नहीं, there is no user and kernel space in the monolithic architecture, monolithic structure। okay, it contains all the services like process management, file management, scheduler, virtual memory in the kernel space। सारे बड़े बड़े काम, छोटे छोटे काम सब हमारे कर्नल स्पेस में होते हैं। Monolithic kernel is one single program that contains all of the code necessary to perform every kernel related task। यानी कि जितना भी कोडिंग पार्ट है, मतलब इसका पूरा इसमें दो लाइन लिखी है, मैं इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट भी लिखता हूँ, दिस नॉट द प्रॉपर वे ऑफ मेकिंग द स्लाइड। ओके, बिकॉज मैं पहले भी मेरी स्लाइड ऐसे ही होती है, बिकॉज दिस स्लाइड यू कैन एक्ट इट एज अ नोट्स आल्सो। आप अपनी स्लाइड को बाद में एज अ नोट्स, एज अ रेफरेंस के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग द वेरी शॉर्ट वन, ठीक है, मतलब खाली बस पॉइंट्स लिखने के बजाय मैं पूरा स्टेटमेंट डाले होंगे भी, सो दैट पीपल कैन रेफर दिस पर्टिकुलर स्लाइड एज अ नोट्स, ठीक है। तो ये है पर्पस, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ मेकिंग द प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन नहीं है जिसमें कंटेंट निकाल के जगह रखता हूँ, सो दैट आई कैन प्रेजेंट इट टू यू पीपल आल्सो, ठीक है, और बाद में आप इसको रेफर भी कर पाओ। So whenever you are making any presentation, make sure that you write your points on, and then you explain those points। और यहाँ पर आपको ये स्लाइड बाद में भी रिफर करनी है, इसके लिए मैं सारे कंटेंट डाल देता हूँ। ओके, सो ओके, we were talking about this point, that is monolithic kernel is one single program। okay, यहाँ पर कोई मॉड्यूलराइजेशन भी नहीं किया भाई साहब ने, सारा का सारा कोड एक ही, ठीक है, और सारे वो अच्छा वो जो कोड है वो सारे काम करेगा। Most of the work are done via system call, as we have discussed about the system call also। ये system call के पास सारा कंट्रोल होता है, प्रोसेस, मेमोरी, IO, फाइल, डिस्क, ओके, एंड कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन, एवरी जितना भी होता है आपके सिस्टम कॉल आपके कर्नल के पास में होता है। और कर्नल के मतलब काम किसके थ्रू करता है, सिस्टम कॉल के थ्रू। So all the work is being indirectly, all the work are being done by means of the system calls। okay, तो ये सिस्टम इसके बारे में, हाई प्रिविलेज्ड, हाई परफॉर्मेंस, इट इज लार्जर देन माइक्रो कर्नल। तो मोनोलिथिक एक्चुअली एक साथ में है, तो थोड़ा सा माइक्रो कर्नल से बड़ा भी है, तो कुछ पॉइंट मुझे बाद में और मिले तो मैंने डाल दिया। So and it is fast also, user and kernels share same address space, as we don't have separate user space and kernel space, हमारे पास में अलग अलग नहीं है, तो हम लोग सेम ही एड्रेस स्पेस दोनों के लिए शेयर करते हैं, तो स्विचिंग डिले बचता है। तो कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी निकलते हैं किसी, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास में एक ही जगह पर हमारा यूजर प्रोग्राम, हमारा कर्नल प्रोग्राम सेम जगह रन हो रहा है, तो स्विचिंग डिले बहुत कम मिलता है, और यही स्विचिंग डिले हमको माइक्रो कर्नल में ज्यादा मिलता है, बिकॉज
अगर आपको कुछ आपको कुछ सर्विस रिक्वायर्ड है, कर्नल प्रोग्राम से कुछ रिक्वायर्ड है विच इज एग्जीक्यूटिंग इन द कर्नल स्पेस, तो आपके यूजर स्पेस को सिस्टम कॉल के थ्रू बोलना पड़ता है, तो आपका इसको इसको बोलेगा, वो काम करेगा और फिर आपको रिस्पॉन्स ला के देगा। तो इनके बीच में जो स्विचिंग होता है, जो आता है, टाइमिंग लगता है, वो टाइमिंग उसमें रिक्वायर्ड होता है माइक्रो कर्नल। वहां पर वो एक डिसएडवांटेज है, यहाँ पर उसका एडवांटेज है। लेकिन वो भी है कि भाई अलग अलग हो, और वहां पर यूजर स्पेस कर्नल स्पेस अलग अलग होने की वजह से वहां पर क्रैशिंग बहुत कम होती है, यहाँ पर क्रैशिंग ज्यादा होती है। हार्ड टू एक्सटेंड कॉज यूजर एंड कर्नल एक साथ में है, ठीक है, इसके लिए इसको हम लोग एक्सटेंशन का सोच नहीं सकते, कुछ अगर आपको और मॉड्यूल्स इसमें ऐड करने हैं तो उसका सोचना सोचना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बट वहां पर अलग अलग है तो चीजें पॉसिबल हो जाती है। So it was one diagram, the left hand side जो diagram you can see, that diagram I saw at one place. The right hand side diagram I seen in the book. So I have just taken the screenshot और उसका मैंने लेके यहाँ पर लगाया. Okay. So this is diagram, as you can see all the above modules you can see Apache, Mozilla, Emacs, all these are the application program at the top. Okay. This is my kernel over here. Okay. So यहाँ पर देखो सारा का सारा एक ही थैली में, ओके, एक ही कैरी बैग में सारी चीज। सॉरी फॉर बीइंग लेट, 53 हो गए, लास्ट हो गया खत्म। एंड यू कैन सी ये आपका जो नीचे का जो पार्ट है सारा का सारा सीपीयू, नेटवर्क, मेमोरी, डिस्क, ये सारा का सारा हार्डवेयर लेवल पे, ठीक है। यू कैन जस्ट इमेजिन ये तीन लेयर को बोलना मत। जो टॉप लेयर है आपकी, ये है एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए, उसके बाद में आपका जो भी सिस्टम है, ठीक है, आपका कर्नल है, और बाद में आपका हार्डवेयर लेयर। ये तीन लेयर हमेशा आपको किसी भी आर्किटेक्चर में नजर आए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और कल इसको थोड़ा रिपीट करके हम लोग माइक्रो कर्नल एंड देन सिस्टम कॉल दोनों को करेंगे। ओके, आई होप आज हम लोग थोड़ा फास्ट गए हैं, स्टिल आई कैन, you people can manage. Let me start recording.